अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज आमिर सुहेल। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा फिलोसफी, द इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। टुडे we will be having a discussion over a major problems and the methods of philosophy. In first lecture we have discussed Yes, sir. about the why do we study philosophy. Now we are coming into our basic question, that is that what are the problems, what are the major problems, major fundamental issues, and what are the methodologies which has been adopted by the philosophers to address those fundamental issues, those major problems. So look at your screen, please. Now you can see that on the one side, that is the blue side, these are the problems. And the other side, the red color side, that is the methods. What are the problems? The problems, the specific enduring domains of the human inquiry. Philosophy maps out the fundamental questions regarding the reality, regarding the society, and the mind that defy the simple scientific measurement that is called the problems, which is related to the philosophy. कौन से हैं देखें प्लीज. Regarding the reality, the scientific, the society, and the mind that defy the simple scientific measurement. और ये वो चीज़ है जो को डिफाई करता है सिंपल साइंटिफिक मेजरमेंट. अब मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप को याद हो, हमने एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि इस तरह ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट इज सब्जेक्टिविटी. इस तरह के हमने फर्स्ट जो लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था. अब इसके लिए फिर मेथडोलॉजीज यूज करते हैं फिलोसफर्स. और वो मेथडोलॉजी क्या है देखे प्लीज. The rigorous analytical instruments developed over millennia, philosophy relies on the precise logic, conceptual deconstruction, and the hypothetical testing to navigate the terrain. ये मेथडोलॉजी है. अब मेथडोलॉजी कौन सा ये अप्लाई करता है? प्रिसाइज लॉजिक, the conceptual deconstruction, and the hypothetical testing to navigate the terrain. And the terrain is the problems. Now come to the terrain. Terrain क्या है? जो problems है ये हमने we have divided the problems into three basic zones. And the first zone, this is related to the reality and the truth. And the reality and the truth comprises of two basic problems. The one is metaphysics, and the other one is epistemology. What is metaphysics and what is epistemology? We will be having a discussion over the metaphysics and epistemology later on in this very lecture. Second zone में हमारे पास आता है the society and section. अब सोसाइटी एंड सेक्शन में कौन कौन से फंडामेंटल क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स है? वो एथिक्स के बारे में है, वो पॉलिटिकल एंड सोसाइटी के बारे में है, सोशल के बारे में. समझ आ रही है ना आप लोगों को? जी Yes, सर. sir. कोई और भी ज्वाइन कर रहा है इस क्लास को? ये सर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, सेंड किया है. अच्छा अच्छा, ओके. एंड द थर्ड जोन, दैट इज द सेल्फ एंड सेंसेशन. और सेल्फ और सेंसेशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज है, दैट आर रिलेटेड टू द माइंड एंड कॉन्शियसनेस एंड द एस्थेटिक्स.
So the terrain is directly related to the problems or the fundamental issues. It has been divided into the three zones. And the first zone, that is the reality and the truth. The reality and the truth, we will be discussing about the problems of the metaphysics and the problems of the epistemology. And the second zone, that is the society and action, that will be comprised of the ethics related issues, the ethics related problems, and the political and social. And then the third zone, that is related to the mind and the consciousness and the aesthetics. Please read out these lines. The philosophical terrain is vast but highly organized. Every major question human beings ask falls into one of these fundamental domain. अब ये जो fundamental domain है ना, whatever the question which is related to the philosophical terrain, one or the other way, वो question किसी न किसी एक terrain में, किसी न किसी एक zone में वो fall करता है. Now come to the details of these zones. In zone 1, we will be discussing about the metaphysics and the epistemology. What is metaphysics? Metaphysics is the nature of reality. What is nature? नेचर को तो पता है आप लोगों को कि नेचर की जो हकीकत है ये क्या है. वी आस्क सम क्वेश्चन, सम फंडामेंटल क्वेश्चन. कौन से उसमें हम वो क्वेश्चन रेस करते हैं. व्हाट इज द अल्टीमेट सब्सटेंस ऑफ दिस यूनिवर्स? Is reality objective or subjective? These are the questions which are one or the other way related to the metaphysics in the zone 1, that is related to the reality and the truth. And these are the problems in the reality and truth. अब इसमें कोर टेंशन कौन सा है? कोर टेंशन मतलब अभी आपने किस चीज का टेंशन लेना है कि बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है. इसमें हमने जो कोर टेंशन हमारा है वो है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म. Are humans' action predetermined by the causal laws, or do we possess genuine freedom to choose? This is the issue. कि ये जो हमारी जो फ्री विल है, ये फ्री विल है या हमारी जो ह्यूमन के जो एक्शंस है ये पहले से डिटरमाइंड है on the basis of what? Causal laws, or do we possess genuine freedom to choose? फिर आता है epistemology. It is also a problem. किस तरह? The nature of knowledge. Epistemology is the study of the nature of knowledge. ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, we are sharing the knowledge with one another. Basically आया किधर से है, इसके एपिस्टीम क्या है, इसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है. हर एक का अपना अपना एक, हर एक वर्ड का, हर एक नॉलेज का अपनी एक एपिस्टेमोलॉजी है, जो कि वो अगेन कौन फाइंड करता है, उसकी सोल्यूशन, उसकी मेथोडोलॉजी कौन डिपेंड करता है. अगेन फिलोसफी. किस तरह? इट आस्क्स सम क्वेश्चन. The question that is, how do we acquire knowledge? How do we acquire knowledge? नंबर ये है. दूसरा, can we trust our sensory faculties and reasoning? ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि एपिस्टीम के साथ रिलेटेड है. हम नॉलेज किस तरह एक्वायर कर रहे हैं, और आया हम अपने जो सेंसरी है, जो फैकल्टीज है, और हमारी जो रीजनिंग है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं. इसमें जो कोर टेंशन है वो दो है अगेन. एक है ऑब्जेक्टिव रियलिटी वर्सेस परसीव्ड नॉलेज, द गैप बिटवीन व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड व्हाट द ह्यूमन माइंड इज कैपेबल ऑफ कंप्रहेंडिंग. तो ये फिर फिलोसफर्स इसी में से ये कोर टेंशंस को उठा के उसके ऊपर मेथोडोलॉजी अप्लाई करके फिर आपको कहता है कि दिस इज द मेथोडोलॉजी through which you acquire knowledge, and these are the sensory faculties, these are the reasoning of yourself जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते या नहीं कर सकते. तो ये है दो प्रॉब्लम जो फिलोसफी फेस करता है. नेक्स्ट नेक्स्ट है
सोसाइटी एंड एक्शन। अब सोसाइटी एंड एक्शन में दो किस्म के इश्यूज है, एक है एथिक्स का, दूसरा है पॉलिटिकल एंड सोशल। इन एथिक्स, द इंडिविजुअल morality the individual morality address the basis of moral judgment, right versus wrong and good versus evil। अब एथिक्स में सबसे बड़ा मसला क्या है? राइट वर्सेस रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, what the Kashmiri freedom fighters they are doing in Kashmir uh, against the India, is that right? आप क्या कहते हो? जी मीना, आप क्या कहते हो? वो ठीक कर रहे हैं? यस सर। सर कश्मीर क्या? जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कि वो लड़ जी रहे हैं सर। अगेंस्ट द इंडियन सोल्जर्स, वो ठीक है आपके नजदीक? यस सर, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो ठीक है। But when you are studying this very question बट इन on the एथिक्स side, दिस इज नॉट गुड। please listen me. If you are studying this very subject, this very question on the side of the Indians, तो वो क्या है? वो गलत कर रहे हैं। अब अगेन, राइट वर्सेस रॉन्ग क्या है, इसकी जजमेंट कौन करेगा? इसकी ऑब्जेक्टिविटी कौन देखेगा कि ये सही है ये गलत है? तो ये कौन देखता है? अगेन ये फिलोसफी देखता है। फिलोसफी किस तरह देखता है? देयर आर सो मेनी थियरीज जो कि वो क्या है, रिलेटेड है, जो कि वो रिलेटेड है किस चीज के, कि वो आप किसी मसले को, किसी इशू को वो आइडेंटिफाई करते हो। अब व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इवल, इवल और गुड, ये दोनों के बीच में क्या लिंक है? अब मेरे नज़दीक एक चीज होती है कि वो गुड है, दूसरे के नज़दीक वो जो मेरे नज़दीक गुड है वो इवल होगा। अब इसको कौन जज करेगा? अगेन, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, जो कि फिर डिफरेंट मेथडोलॉजीज के जरिए से फिलोसफी वो एड्रेस करते हैं। The same is the issue that is the political and social. Political and social में क्या है? Collective organizations addresses the governance, individual rights and the responsibilities within a society। ये कोई ज्वाइन कर रहा है कि नहीं बस? सर नहीं ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये जो तीन पॉलिटिकल एंड सोशल है, अगेन दिस इज एन इशू। किस तरह? कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन addresses governance, individual rights and the responsibility within society। अब इसमें कोर डिबेट क्या है दोनों में? एथिक्स में कोर डिबेट क्या है? रिलेटिविज्म वर्सेस ऑब्जेक्टिविज्म। Are moral values culturally relative or do universal objective moral truths exist? बाज मॉरल वैल्यूज हैं जो कि वो क्या है, रिलेटिव है। किस तरह? अगर हमारे जो कल्चर है उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल, गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स। अब गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, अब ये हमारे जो कल्चर है, पश्तून कल्चर है, तो इसके साथ ये रिलेटिव है। अब ये क्या ये यूनिवर्सल है? दैट इज अ डिबेटेबल, दैट इज अ कोर डिबेट। ये यूनिवर्सल है कि नहीं है, कि यार रिस्पेक्ट एल्डर्स को देना ये जरूरी है कि नहीं है? यूनिवर्सल। अगेन इन द पॉलिटिकल एंड सोशल, कोर डिबेट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। हाँ, how should wealth and resources be distributed to ensure fairness? For example, John Rawls' theory of justice as fairness। आगे हमने इसको थोड़ा सा एक फिर एक्सप्लेन करेंगे, रिलेटिविज्म को भी, ऑब्जेक्टिविज्म को भी, ये जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस वगैरह को आगे हम डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। आगे जो थर्ड जो इशू है वो है सेल्फ एंड सेंसेशन। ये भी एक मसला है, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। द मैकेनिज्म ऑफ अवेयरनेस focus on the nature of mental states and whether non-human animal possess consciousness। मजे की बात है कि नहीं?
ये क्वेश्चन है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है। द मैकेनिक्स ऑफ द अवेयरनेस फोकस ऑन द नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड वेदर नॉन ह्यूमन एनिमल पोजेस कॉन्शियसनेस। आप तो शऊर रखते हो चल जो इंसान है, लेकिन जो अदर देन जो इंसान है, क्या वो कॉन्शियसनेस को एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पोजेस करता है कि नहीं? ये एक क्वेश्चन है। द मेन बॉडी प्रॉब्लम इसमें क्या है? द माइंड बॉडी प्रॉब्लम है हाउ डू फिजिकल ब्रेन प्रोसेस create mental phenomena. Solutions range from the dualism to materialism. दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एस्थेटिक्स का। द नेचर ऑफ ब्यूटी फोकसेस ऑन द पर्पस ऑफ आर्ट, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। द डिफिनीशन, अब इसमें जो डिफिनिशनल प्रॉब्लम है वो क्या है? इज ब्यूटी एन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड और एंटायरली सब्जेक्टिव टू द ऑब्जर्वर? ये क्वेश्चन है। ये जो ब्यूटी है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, ये ऑब्जेक्टिव है या ये सब्जेक्टिव है? अब आपके नज़दीक एक सिंदरी है, फॉर एग्जांपल, आप जाते हो कालाम, तो कालाम को आप देखते हो कि यार ये क्या खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन दूसरे के नज़दीक को क्या होगा? यार ये क्या बोरिंग सा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो क्या है ये, है कि नहीं है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, ये कौन फिर वो करता है, एड्रेस करता है? ये करता है फिलॉसफी। किस तरह देखते हैं आप आगे? ब्रांचेस क्या है? हमने पढ़ा मेटाफिजिक्स को, जो कि क्या है? द नेचर ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, द नेचर ऑफ नॉलेज। एथिक्स, पॉलिटिकल, सोशल, एस्थेटिक्स एंड माइंड्स। इसका जो कोर फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? मेटाफिजिक्स का रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस के ऊपर। ये जो एग्जिस्ट हम करते हैं, क्या ये रियलिटी में है कि नहीं है? इसके जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बीइंग। अब इसमें जो टेंशन वो क्या है? द फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। अब बेसिक जो चीज है, जो कि हम उसको कोशिश कर रहे थे कि ये जो फ्री विल है और जो वर्सेस डिटर्मिनिज्म है, ये क्या चीज है? देखें, फ्री विल क्या है? द philosophical tension debates whether humans have genuine freedom to choose their action, that is called free will. किस तरह? अब ये philosophical टेंशन डिबेट्स है कि आया जो ह्यूमन है उसके पास जेन्युइन फ्रीडम है। जेन्युइन फ्रीडम क्या है? कि वो कोई भी चीज खुद डिसाइड करे। वर्सेस डिटर्मिनिज्म क्या है? if their choices are predetermined by the factors like genetics, environment or fate, that is called determinism. समझ आ रही है ना आप लोगों को? अब ये देखें कि ये जो मेटाफिजिक्स है, जो कि प्रॉब्लम इसमें है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बीइंग, इसमें जो टेंशन है बेसिकली ये दो चीजों के बीच में है। फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म। ये जो नेचर ऑफ बीइंग है, ये डिटरमाइन है या उसके पास फ्री विल है? फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ योर सेल्फ। आप बीएस इंग्लिश में आए हुए हो, तो ये आपका फ्री विल था या डिटरमिन था? आप क्या कहते हो? अब ये आप पर ही ये आप पर ही वो है कि मोस्टली जो फिलोसफर्स है इसके ऊपर पर वो करते हैं कि हाँ ये फ्री विल है या फ्री रिटायरमेंट है। वो उसके जो मेथोडोलॉजीज है वो अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। वो टेंशन, इसी टेंशन के ऊपर उनकी डिस्कशंस होती हैं और आगे वो चीज़ को फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा है वो एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में हमने स्कोप ऑफ नॉलेज किया है। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ नॉलेज, हाउ वी एक्वायर नॉलेज, what is the objective knowledge and what is the subjective knowledge, what is the true episteme and what is the dogma। ये हमने, ये फोर कोर फोकस है। फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है? हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज?
और इसमें जो टेंशन है, जो फिलोसफर्स देखते हैं इसमें टेंशन, ट्रस्टिंग सेंसेस वर्सेस रैशनल स्केप्टिसिज्म। ट्रस्टिंग सेंसेस तो आप लोगों को पता है, दिस कंट्रास्ट इन्वॉल्व्स रिलाइंग ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड रियलिटी वर्सेस क्वेश्चनिंग दोज experiences through rational analysis. फॉर एग्जाम्पल, आपको जो दिखता है उस पर आप यकीन करते हो, जो आप टच करते हो, ये जो फाइव सेंसेस है उससे जो आप नॉलेज एक्वायर करते हो, बेसिकली वो ट्रस्टिंग सेंसेस है। उसके ऊपर आप यकीन करते हैं कि हाँ ये इस तरह है, हाँ ये जो चीज़ मैंने टच किया ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये मुझे लगता है कि ये फलां चीज़ है, ये थोड़ा सा हार्ड है तो मुझे लगता है ये लोहा है। ये इस तरह आप उसको वो कर देते हो। लेकिन रेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? वो दैट इज समथिंग इज, उस पर आप डाउट करते हो कि हाँ मैंने एक चीज को पकड़ा हुआ है हाथों से, ये हार्ड है। हार्ड डजंट मीन कि हर एक हार्ड चीज लोहा होगा। इसके ऊपर आप डाउट करते हो कि ये लोहा है, लकड़ी है, ये पत्थर है, ये पता नहीं क्या चीज है कि ये इतना ज्यादा सख्त है। तो फिर उसके ऊपर जब आप वो चले जाते हो उसी टेंशन के ऊपर जब आप काम करते हो, तो एट द एंड आप किसी नतीजे पर पहुंच जाते हो कि हाँ दिस इज स्टील, दिस इज वुड, दिस इज वट एवर, वो जो आप उसको जो प्रूव करने की कोशिश करते हो। जो तीसरा है, एथिक्स है, दैट इज द मॉरल जजमेंट। मॉरल जजमेंट आप किस तरह करते हो? ये कौन आ गया? मॉरल जजमेंट में व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। इसमें जो टेंशन है, जो फिलोसफर्स है जो कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को किस मेथोडोलॉजी के ऊपर उड़ालें, तो वो टेंशन क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म वर्सेस द मॉरल यूनिवर्सलिज्म। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, अब जिस तरह हमारे यहाँ एक और भी कल्चर है पश्तून में, पर्दा, खवातीन का पर्दा, ये जो बुर्का जो पहनते हैं वील। अब आया ये यूनिवर्सल है या ये कल्चरल रिलेटिविज्म है? इसके बीच में वो एक टेंशन वो होती है और इसके ऊपर फिर वो काम करते हैं। फिर तीसरा है वो एक और है, पॉलिटिकल सोशल गवर्नेंस एंड सोसाइटी। व्हाट इज द आइडियल सोसाइटल स्ट्रक्चर? दिस इज वेरी डिबेटेबल नाउअडेज। पार्लियामेंट्री बेहतरीन है, प्रेसिडेंशियल बेहतरीन है, ये मोनर्की बेहतरीन है, डिक्टेटरशिप बेहतरीन है, कौन सा बेहतरीन स्ट्रक्चर है जो कि एक बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल पेश करे? इसमें अगेन जो टेंशन जो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वर्सेस टोटल इक्वलिटी है। एस्थेटिक्स सेम वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है, आर्ट एंड ब्यूटी है। और इसमें व्हाट डिफाइंस ब्यूटी, ब्यूटी को क्या डिफाइन करता है? अगेन इसमें जो टेंशन जो निकालते हैं, जो डिबेटेबल चीज है, जो कि वो डिबेट इसके ऊपर होता है, वो है ऑब्जेक्टिव आर्ट वर्सेस सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन इन मेनियन फ्लो। अब सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी है कि कौन सा एक चीज है जो कि वो सारे कहते हैं कि हाँ ये बेहतरीन है, ये कहते हैं कि नहीं ये बेहतरीन नहीं है। फिर आगे आता है माइंड कॉन्शियसनेस शूर। हाउ डू माइंड रिलेट टू ब्रेन? हाउ डज माइंड रिलेट टू ब्रेन? ये माइंड किस तरह रिलेट करता है ब्रेन के साथ? इसमें डुअलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म इन मेनियन प्रो। आगे हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे लाइक दिस। अब देखते हैं कि ऊपर जो प्रॉब्लम्स है, जो हमने तीन जोन्स में उसको डिवाइड किया हुआ था, अब जब फिलोसफर्स आते हैं और इसी प्रॉब्लम्स को एक मेथोडोलॉजी अपना के उसको एड्रेस करते हैं, तो फिलोसफर्स के पास एनालिटिकल टूल किट क्या है, देखिए प्लीज। ये देखिए, नंबर वन, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? लॉजिकल। जी सर। ये भी एक टूल है इन लोगों के पास, लॉजिकल।
इन्हीं लॉजिकल में, दोनों लॉजिकल में ये कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, कौन सी वो मेथोडोलॉजी है? कंसेप्चुअल एनालिसिस एंड रैशनल एनालिसिस। कंसेप्चुअल एनालिसिस कौन से एनालिसिस होते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। आप लोगों को सिर्फ ये टूल किट को देके। दूसरा है एविडेंशियरी, एविडेंस बेस। देखिए इसको, इसमें एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन और जो हिस्टोरिकल एनालिसिस है उसको हम देखते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। और ये कौन करता है? ये फिलोसफर्स। एक है एंटर इंटरगेटिव और इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में क्या करते हैं? थॉट एक्सपेरिमेंट्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब ये तीन इनके पास टूल किट है, और तीनों में दो दो इस तरह के इनके पास मेथोडोलॉजीज है जिसको ये अप्लाई करते हैं। आगे देखें प्लीज। अब ये देखे, नंबर वन मिसी इनपुट है लॉजिक इंजन में। सबसे पहले क्या होता है? मिसी इनपुट है, आपके पास 150 चीजें हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा ये सही है, कौन सा गलत है। ये अनरिफाइंड आइडियाज है आपके पास, समझ आ रही है ना? अनरिफाइंड है। फिर कंसेप्चुअल एनालिसिस के पास आप जाते हो। कंसेप्चुअल में आप क्या कहते हो? क्लेरिफाइंग द इनपुट, uncovering underlying assumptions and removing the ambiguity from the terms. For example, Plato and John Rawls refining the exact dimensions of justice. क्या है? आपके पास जो मिसी इनपुट है लॉजिक, जो आपका जो टूल किट है फिलोसफर के पास, उसमें से जो रिलेवेंट है वो अपने पास रखते हैं, जो इररिलेवेंट है उसको साइड पे करते हैं। तो ये कंसेप्चुअल के बाद ये चला जाता है रेशनल की तरफ। अब रेशनल में क्या होता है? रेशनल में होता है इवेलुएटिंग द मैकेनिज्म यूजिंग लॉजिक, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन एंड द डिडक्शन ऑफ कंक्लूजन्स। अब इसमें क्या है? इसमें अगर आप देखें, एक मिनट, अगर इसमें आप देखें, आप जो फिलोसफर्स है ये इवेलुएट करता है एक मैकेनिज्म यूजिंग द लॉजिकल आर्गुमेंट्स एंड द डिडक्शन ऑफ कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन को डिडक्ट भी कर देते हैं, और जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं उसकी एवेल्युएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल Socrates मेथड ऑफ डायलेक्ट्स, क्वेश्चनिंग बिलीव्स टू अनकवर द कंट्राडिक्शंस एंड अराइव एट अ डीपर ट्रुथ्स। अब ये Socrates का एक बेहतरीन तरीक़े वारदात थे कि वो पहले क्वेश्चन 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 कर 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 करके एट द एंड ऑफ द डे वो पहुंच जाता था ट्रुथ के पास। और फिर एंड पे चला जाता है आपका लॉजिकल आउटपुट, और वो क्या होता है? एक रिफाइंड प्रिंसिपल और एक्सपोर्ट कंट्राडिक्शंस। आगे क्या है? द टेस्टिंग ग्राउंड्स। अब टेस्टिंग ग्राउंड्स में दो चीजें वो आप करते हो। आप एक है थॉट एक्सपेरिमेंट्स, दूसरा है एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। अब ये एविडेंशियली है। देखिए सेकंड नंबर पे जो एविडेंशियली है। अब एविडेंशियल में आप किस तरह करते हो? देखिए, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, द मेंटल सैंडबॉक्स, designing the hypothetical scenario to isolate the complex issues and uncover the hidden implications of the philosophical principles without real world constraints. Empirical investigation में आपका क्या कहते हो? The real world data, borrowing methods from the natural and social sciences, analyzing the empirical evidence to address the philosophical questions. For example, Thomas Kuhn's analysis of scientific paradigm in the philosophy,
in the philosophy of science. एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन पे तो आप लोगों को मेरे ख्याल में मैंने बताया भी हुआ था, लेकिन दोबारा आप लोग थोड़ा सा सुने। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन में आप जो चीज़ आपको नजर आती है उसमें से आप चीज़ों को देख के जो चीज़ आपके पास रिलेवेंट है वो छोड़ के दूसरे को सेट पे रखते हो। थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो, वो मेंटल सैंड बॉक्स है, 120 चीज़ें हैं। आप हाइपोथेटिकल सिनारियो क्रिएट करते हो और कहते हो कि ये ठीक और ये गलत हो। उसमें से आप थॉट में ही चीज़ों को अलग आगे पीछे करके अपना एक डिडक्शन ड्रा करते हो। अब आगे क्या है, broaden द लेंस, किस तरह हिस्टोरिकल एनालिसिस है, लुकिंग अपवर्ड किस तरह। अब हिस्टोरिकल एनालिसिस में आप क्या करते हो, एक चीज है जो कि रिलेवेंट था आपके एक इश्क के साथ, उसको आप क्या करते हो, अ, उसको आप इधर देखे इधर। In this, you contextualizing the contemporary debates by studying past thinkers and tracing the concept development. किस तरह, इसमें आप जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स है उसको आप पास्ट थिंकर्स की तरफ लेके जाते हो और आप ट्रेस करते हो जो करंट जो चीज़ें हो रही है। फॉर एग्जांपल, हमने रियलिस्ट जो एक था आइडियलिज्म, दूसरा था रियलिज्म। रियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि रियलिज्म बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है ये बड़ा श्रीड है, ये बड़ा कनिंग है, दैट इज वाई जो इंटरनेशनल सिस्टम है इसमें पीस प्रिवेल करना बड़ा मुश्किल है। हमने ये बात की थी और हमने इसको अप्लाई किया हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट पे, वर्ल्ड वार सेकंड पे, फिर कोल्ड वार के ऊपर भी। लेकिन आजकल जो ईरान इसराइल और जो यूएस का जो मसला है, सेम चीज को आप उधर लेके जाते हो उन्हीं वर्ल्ड वार फर्स्ट में, वर्ल्ड वार सेकंड में। जब आप उसको कंटेक्सचुअलाइज करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये दोबारा भी उसी तरह का चीजें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर थोड़ी सी इजी हो जाती है। आप अपने मसले के जड़ तक पहुंच सकते हो। दूसरा जो अप्रोच है, जो लेंस है जो यूज करते हैं फिलोसफर, वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब कोई इशू है, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज अटैकिंग ईरान, ही इज अटैकिंग वेनेजुएला। नाउ रिसेंटली yesterday night, he was talking about the Cuba, and he was telling that in my presidency the Cuba will be occupied by the USA। अब ये देखें, उसको आप जब आप स्टडी करते हैं एज ए पर्सनैलिटी, तो उसमें आपको फिलोसफी के साथ साथ एक और इस तरह के सब्जेक्ट्स का भी आपकी ज़रूरत होती है इंटर डिसिप्लिनरी की, आप उसको असेस करो। और वो क्या है, फॉर एग्जांपल इधर जो मैंने दिया हुआ है ये देखे, साइकोलॉजी, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिलोसफी के पास जो क्वेश्चन आ जाता है तो इट डजेंट मीन तो फिलोसफी की जो मेथोडोलॉजी है उधर ही होगा, लेकिन जो दूसरे जो डिसिप्लिन है, न्यूरो साइंसेस, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, ये जितने भी इश्यूज हैं ये उधर से फिलोसफी, इधर से भी वो अपना वो ले सकता है, हेल्प ले सकता है और वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब आते हैं टूल किट। दोबारा वो जो ऊपर है उसको एक ब्लॉक में है। ब्लॉक में किस तरह रेशनल एनालिसिस क्या है, इसके जो प्राइमरी मैकेनिज्म है लॉजिकल रीजनिंग है एंड द प्रेमिस इवोल्यूशन है। आउटपुट इसके क्या है, एक्सपोजिंग द कंट्रडिक्शंस, रिड्यूसिंग द कंक्लूजन्स। और फेमस एग्जांपल इसके है सोक्रेटिक डायलेक्टिक्स। कंसेप्चुअल एनालिसिस क्या है, एट एग्जामिनिंग द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक टर्म्स। आउटपुट इसका क्या है, रिमूविंग द एम्बिग्विटी एंड रिफाइनिंग द आइडियाज। और बेहतरीन इसका जो फेमस एग्जांपल है ये प्लेटो और जॉन रॉस की जो जस्टिस है ये है। प्लीज राइट डाउन प्लेटोज जस्टिस के ऊपर आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट सबमिट भी करना है और मैंने आप लोगों से पूछना भी है। प्लेटो एंड जॉन रॉल्स
जस्टिस। ये नोट डाउन कर लें ताकि थोड़ा सा आप लोग खुद भी पढ़े। अच्छा, थॉट एक्सपेरिमेंट्स क्या है? हाइपोथेटिकल सिनारियोज है, सिमुलेशन है, अनकवरिंग द हिडन इम्प्लीकेशंस है। और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है, सिमुलेटेड मेंटल मॉडल्स है, एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, दोबारा गैदरिंग द साइंटिफिक डाटा एंड एविडेंस, ग्राउंडिंग फिलोसफी इन ऑब्जर्व्ड रियलिटी। और इसकी जो फेमस एग्जांपल है वो कुहन साइंटिफिक रिवोल्यूशंस है। हिस्टोरिकल एनालिसिस में स्टडिंग पास्ट आर्गुमेंट्स एंड थिंकर्स। और इसमें जो आउटपुट है या उसका जो गोल है, ये कंटेक्चुअलाइज करता है जो करंट की जो थीम्स हैं विद द हिस्ट्री के साथ। और इसमें जो बेहतरीन एग्जांपल है वो अरिस्टोटल जो मेटाफिजिक्स है। और इंटरडिसिप्लिनरी क्या है? ये कोलैबोरेशन विद द एक्सटर्नल साइंसेस। जो आउटपुट है ब्रिजिंग द फिलोसफी विद हार्ड साइंसेस। एंड इसकी जो फेमस है कॉग्निटिव साइंस ऑफ मैन है। अब ये थोड़ा सा आप लोग देखें, सिंथेसिस। चलो इसको इसको हटा देते हैं, सिंथेसिस को, बस इसको ना पढ़े, इधर ही ठीक है बस। सही है। ठीक है सर।